A very good morning to you all. As we have finished with our first unit earlier only, today we will start with our unit 2, and the name of the lesson is Buddhist, Jain and Hindu art. We will study these art done during different periods of time in India. There would be some sculptures and paintings done during this one era known as the Mauryan era. The Mauryas. The Mauryan period is an important period in the history of Indian art and architecture. The foundation for Indian art were laid, which later reached their height during the golden age of Guptas. Ashoka, a mighty king who ruled during the 3rd century BC, was the grandson of Emperor Chandragupta, the founder of Maurya dynasty that covered a vast territory from Afghanistan in the northwest to South India. During his reign, the Mauryan Empire reached at its peak. As you already know, you are familiar with the name of this mighty king named Ashoka. Ashoka was a great emperor. उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और ये कहा जाता है कि उसने हर लड़ाई को जीता. उसकी लास्ट जो लड़ाई थी वो थी कलिंगा, एंड आफ्टर दैट वॉर ऑफ कलिंगा हिज माइंड एक्चुअली चेंज्ड. दैट हाउ इट हैज़ हैपेंड, लाइक he when he won the war and he looked at the war field, there were only dead bodies. He couldn't see any person alive there, and he could see the children of the dead soldiers crying over their bodies. This actually changed the mind of Ashoka, and after this last fight, Kalinga, he adopted Buddhism. Ashoka experienced a change of heart after the dreadful battle of Kalinga, where thousands lost lives and were taken into slavery. After seeing the senseless bloodshed, he adopted the Buddhist path of righteous living and decided to spread Buddha's teachings of peace and non-violence far and wide. जैसे मैंने आपको बताया कि कलिंगा के युद्ध पर के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने ये जब देखा कि बिना वजह ही हज़ारों जानें चली गईं और बहुत सारे गुलाम बन गए, और ये सब देखकर उसको लगा कि उसको ये जो जीवन है उसको ठीक रास्ते पे ले आना चाहिए. तो उसने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया एंड ही स्टार्टेड प्रीचिंग बुद्धिस्ट टीचिंग्स फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस, और ये उसने हर जगह फैलाने के लिए अपने बहुत सारे रिसोर्सेज इसी फील्ड में लगा दिए थे. सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न आर्ट आर द फेमस अशोकन pillars that he got built across the country. These columns are the marvels of art, architecture, as well as engineering. The pillar was made out of a single stone, which was cut, shaped, and polished. This required great engineering mastery that included carrying of massive blocks of stone from the quarries that were hundreds of miles away. In some cases, they even had to transport the stones to the hilltops. जितने भी आप एग्जाम्पल्स देखोगे मॉडर्न आर्ट के, वो हैं सबसे ज़्यादा फेमस उनमें है अशोकन पिलर्स, जो उसने अपने सारी कंट्री के अक्रॉस बनवाए थे, और उनका जो काम था उसके ऊपर आर्किटेक्चर और जो मार्वल्स ऑफ आर्ट थे वो एक अलग ही उसकी टेक्निक को बयान करते हैं. द पिलर वर मेड आउट ऑफ अ सिंगल स्टोन. सारे जितने भी पिलर इरेक्ट हुए हैं वो सारे सिंगल स्टोन में सारे काव हुए हैं. ये सारी काविंग तो आर्टिस्ट ने किया जो भी, वो बहुत हाई लेवल का था, बट इन सब स्टोन्स को एक निश्चित जगह पर लेके जाना भी 100 of miles away was a task.
और बहुत बारी तो बहुत ऊंची ऊंची जगह पर जैसे हिल टॉप्स पर उन पत्थरों को पहुंचाना और फिर उनको बिना डैमेज किए हुए उनको कार्व करना और वहाँ पर स्थापित करना वाज मार्वलस। और ये जो उसने टेक्निक अपनाई होगी उसकी प्रेज़ आज भी की जाती है, क्योंकि जितने भी वो सैंडस्टोन्स हैं वो उनकी पॉलिश एज इट इज़ मेंटेन्ड है। द क्वालिटी इज़ रिमार्केबल, द वर्क इज़ डन वेरी ब्यूटीफुली एंड वेरी इंट्रिकेटली, बहुत ही डेलिकेटली काम हुआ है। और ये जो आप बोर्ड पर देख रहे हो ब्लॉक्स ऑफ स्टोन फ्रॉम क्वेरीज, क्वेरीज वो होता है जहाँ खदानें होती हैं पत्थरों की, तो उन खदानों से वो बड़े बड़े ब्लॉक्स को काट कर शिफ्ट किया जाता था और फिर वहीं पर उन स्टोन्स को कार्व किया जाता था। There are close to 20 Ashoka pillars discovered so far. According to the noted art historian Vidya Dahejia, these finely polished pillars were carved off 10 colored sandstone from a single quarry at Chunar near the modern capital of Patliputra, now known as Patna, the capital of Bihar. The pillars were decorated on the top by a capital carved out of single piece of stone of an inverted bell-shaped form, finely carved like a lotus, on which rested a thick disc called elaborate base, over which perched a magnificent animal like the Sarnath loins. ऐसा कहा जाता है कि इतने खूबसूरत पिलर्स जो हैं कम से कम 20 थे जो अशोका ने इरेक्ट करवाए या जो अभी तक हमें डिस्कवर हो चुके हैं। और एक फेमस आर्ट हिस्टोरियन विद्या दहेजिया सेज के ये जो सारे फाइनली पॉलिश पिलर्स हैं वो एक सेम ही सैंडस्टोन से एक सिंगल ही क्वेरी से, मतलब वो चुनार से लाए गए थे। और जो उस समय मौर्यन साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और आजकल इसको पटना के नाम से जाना जाता है, द कैपिटल ऑफ बिहार। तो पिलर्स को डेकोरेट कैसे किया जाता था कि एक सिंगल स्टोन से कार्व करके उसके जो टॉप पर था वो एक इन्वर्टेड बेल शेप में उसको कार्व करके वो लोटस बनाया जाता था। जैसे हम आप लोटस को उल्टा कर दो वो बेल शेप में आएगा, तो वैसा लोटस बनाया जाता था। आगे आप जब सारनाथ का एग्जाम्पल देखोगे तो वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा इन्वर्टेड लोटस। तो उसके ऊपर एक एलेबरेट बेस होता था नीचे उसके, और उसको थिक बेस को क्या कहा जाता था, उसको बोला जाता था मेन जो पेडेस्टल, और उसके ऊपर मैग्निफिशेंट एनिमल्स लाइक सारनाथ लॉइंस, मतलब 4 लॉइंस कार्व्ड हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। The pillar shafts were also made of single piece of stone measuring some 9 meters 30 feet in height. अब जो सारा उसका स्तंभ था, मेन पिलर जो उसकी शाफ्ट, उसकी जो मेन पाइप जैसी जो लुक होती है, वो जो था वो किससे बना था, वो भी एक अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट हाइट होती थी उसकी, 9 मीटर लंबा होता था वो, और एक सिंगल पीस से बनता था। दे हैड अ स्मूथ पॉलिश सरफेस वर पॉइंटेड ग्रेजुअली टूवर्ड्स द टॉप। जो बड़ी सरफेस थी उसकी वो बड़ी बढ़िया तरीके से पॉलिश थी और वो ग्रेजुअली टॉप की तरफ जाते हुए छोटी होती थी। पिलर कैरी अशोका's message of unity to the Buddhist monks. There were inscribed the Buddhist concept of morality, humanity, dedication, which he wished his people to follow. पहले तो ये सिर्फ स्तंभ पिलर थे, वो उसकी विनिंग हिस्ट्री डिस्क्राइब करते थे, बट लेटर ऑन उसने इसमें चेंजेस लाए थे और उसमें उसने जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स का था उनकी जो मॉरलिटी, ह्यूमैनिटी और डेडिकेशन को लेकर उनकी टीचिंग्स थी वो उसने इंस्क्राइब वहाँ पर खुदवा दी थी ताकि लोग उसको फॉलो करें। Now we will move towards our first work of art of this era. This is known as Lion Capital from Sarnath. If you remember this is also our national emblem. तो हमारा नेशनल एम्बलम अशोकन पिलर से लिया गया है, और इसमें क्या है, इसकी खूबसूरती आप
देखते ही बनती है। ये आपने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के टेबल्स पर देखा होगा, और ये सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में आपको देखने को मिलेगा। और ये हमारे जो करेंसी है उसके ऊपर भी प्रिंटेड होता है। इसको बोला जाता है लाइन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ। तो लेट्स स्टडी दिस। नेम इज़ नोन एज सारनाथ line capital from Sarnath. Medium is polished sandstone, circa 3rd century BC. Period and dynasty is Mauryan Ashoka period. और कलेक्शन है सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, यूपी, उत्तर प्रदेश। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें इन्वर्टेड लोटस बेल शेप में आपको सबसे नीचे वो दिखता है, उसके ऊपर आपको एक पेडेस्टल, हैवी गोल्ड पेडेस्टल दिखाई दे रहे हैं दो, और तीसरा जो है वो ज़्यादा चौड़ा है जिसमें एक आपको अशोकन चक्कर दिखाई दे रहा है, और साथ में मूविंग एनिमल्स, एक घोड़ा है और एक दूसरी तरफ उसके दूसरे एनिमल्स हैं। और उसके ऊपर जो है 4 लाइंस मैजेस्टिकली एक के साथ एक सटक कर फेसिंग टुवर्ड्स आउटसाइड आर स्टैंडिंग, जो 4 दिशाओं का आभास देते हैं कि चारों दिशाओं पर लाइन की तरह हमारे जो सोल्जर्स हैं हमेशा हमारी रक्षा के लिए रहते हैं। Theme and subject matter of line capital from Sarnath. A sculpture of 4 lines standing back to back on an elaborate base or abacus that includes other animals. It was adopted as official emblem of India in 1950. Description: the Sarnath lion capital, the crowning piece of a monolithic Ashokan pillar, was built in the 3rd century BC at the Deer Park in Sarnath, the outskirts of Varanasi. Here Buddha had preached his first sermon after gaining enlightenment and set the wheel of law in motion, Dharmachakra Pravartana. The capital, made of polished sandstone, is more than 2 meters, approximately 7 feet in height. It comprises of 4 roaring lions placed back to back, round slab called abacus. The abacus is supported by a bell-shaped inverted lotus base. On the side of the abacus are carved 4 animals: lion, elephant, bull, and horse, moving in a clockwise manner. These animals, carved with great skill, alternate with 4 smaller dharmachakra or wheel of लॉ। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है। अपने गवर्नमेंट और के सारे ऑफिस में इसको देखते हो, या फिर अपनी करेंसी नोट पर भी ये इसका इम्प्रेशन दिया जाता है। तो जैसे कि थीम खुद में सब कुछ क्लियरली बता ही रहा है कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड लोटस है जो मैंने आपको दिखाया भी है पिछले इमेज में। अगर आपको अभी नहीं याद आ रहा तो आप पीछे बैक स्लाइड करके देख सकते हैं। तो इन्वर्टेड लोटस के ऊपर एक एबैकस है जिसके ऊपर डिफरेंट एनिमल्स आर शोन मूविंग, और एक अशोकन चक्कर भी है जिसमें 24 स्पोक्स हैं, और लाइंस जो हैं वो ब्यूटीफुली कार्व्ड हैं। थोड़ा सा उसमें एक ड्रामेटिकल इफेक्ट देने के लिए जो उनका बालों का स्टाइल है वो डिफरेंट है, बट वो मैजेस्टिकली रोरिंग एनिमल हैं। जैसे उनके गर्जना शो हो रही है, जैसे कि मुंह खुले दिखाए गए हैं और दांत बड़े शार्प एज्ड दिखाए गए हैं। उनके विस्कर्स को भी बड़े परफेक्टली शोन किया गया है। तो ये एक रिमार्केबल पीस है जिसमें एनिमल स्टडी का भी अपना ही एक अलग लेवल दिखाई देता है, और बहुत ही अच्छे स्किल से एक आर्टिस्ट ने इनको कार्व किया है। लेट मी रिमाइंड यू वन मोर थिंग. There is difference between sculpture and painting. Whatever we are studying right now is sculpture. It is not a painting. Sculpture जो पत्थरों में या वुड में या किसी और मेटल में कार्व्ड होता है उसको स्कल्पचर बोला जाता है। जो दीवारों पर होता है, कागज़ पे किया जाता है, वो पेंटिंग होती है। पेंटिंग के लिए हमें ब्रश चाहिए, कलर्स चाहिए, और हमें कार्विंग के लिए, स्कल्पचर की कार्विंग के लिए हमें टूल्स चाहिए, पत्थर चाहिए, या हमें लकड़ी चाहिए या मेटल चाहिए।
मेटल में कार्विंग नहीं होती है, मेटल में कास्टिंग होती है, ठीक है. सो विल स्टडी लॉइन कैपिटल फर्दर. It is believed that capital was originally crowned by a bigger wheel of Dharma Chakra, with 24 spokes, the broken pieces of which were found at the original site. ये कहा जाता है कि जब ये अपनी बिल्कुल सही सलामत हालत में होगा तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा धर्म चक्र भी बनाया गया था जिसके 24 स्पोक्स थे. ये कैसे पता चलता है कि क्योंकि जहाँ से ये मिला है उसके आसपास उसके टूटे हुए पीसेस भी मिले हैं जो ओरिजिनल साइट थी इस कैपिटल की. The four lines on the top are highly symbolic and stylized with very little hint of naturalness. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये डिज़ाइंड उनको बनाया गया है, ये नेचुरलनेस के आसपास नहीं है, सिर्फ हिंट देने की कोशिश की है कि उनके बाल ऐसे होंगे. हमें पता है कि लॉयन के बाल ऐसे नहीं होते, बट उनको अपने जो स्कल्पचर को था ब्यूटी भी ऐड करना था और उसको एक इम्प्रेशनेबल मार्क भी देना था, तो इसलिए शायद उन्होंने कार्विंग को कुछ इस ढंग से किया है कि वो इम्प्रेसिव लगे. दिस इज क्लियर इन द मेन ऑफ द लाइन. मेन जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइन के जो बाल दिखाए हैं वो ज़्यादा कर्वियर दिखाए हैं. कार्व्ड एज लिटिल flame shaped bunches of hair and the upper lip of the loins shown 3 slit cut lines. अच्छा, जो whiskers की मैं बात कर रही थी, वो जो आप लॉइन के मुंह पर वो 3 कट देख रहे हो वो एक्चुअली उसको whiskers के तौर पे दिखाया गया है, वो कट ऐसे होते नहीं है लॉइन के फेस पे. The superb modeling gives them a great power and dignity. Surprisingly, compared to the majesty of the lines, the animals on the abacus are done with great naturalist energy and defined carefully. Petals of the lotus have rhythmically cut slit curves and contours. अगर आप नीचे उसको देखते हैं लोटस को, तो उसके भी एक एक पेटल को, उसकी एक एक पत्ती को बड़ी ही रिदमिकली उसको कट या स्लिट किया गया है और वो बहुत ही अच्छी सी उसको शेप दी गई है. द सरफेस ऑफ दीज पिलर्स हैज़ अ मिरर लाइक फिनिश. जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तभी मैंने उसकी ये क्वालिटी बताई थी कि वो इतने वेल पॉलिश और इतने वेल फिनिश्ड हैं कि उनकी जो चमक है वो अब तक बरकरार है. इट ऑल्सो रिवील्स द अरिस्टोक्रेटिक एंड इंटरनेशनल नेचर ऑफ मॉडर्न आर्ट. इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान में मॉडर्न डायनेस्टी के टाइम पे जो आर्ट वर्क हो रहा था वो रियली रिमार्केबल था और वो वाकई ही इंटरनेशनल लेवल के टाइप का काम था. The pillar bears the edict of Ashoka's warning as a ruler in Brahmi script. No one shall cause division in the order of monks. जिसमें लिखा है कि कोई भी जो मॉन्क्स का ऑर्डर है उसमें डिवीजन नहीं कर सकता. ऑर्डर मतलब उनका जो क्रम है, उनका जो नंबरिंग है वो बदल नहीं सकता है, ना ही बदलने की कोशिश करनी चाहिए. द ब्रोकन पीसेस ऑफ पिलर आर नाउ इन द म्यूजियम ऑफ सारनाथ. जो इसके टूटे हुए पीसेस हैं अब सारनाथ के म्यूजियम में रखे गए हैं. द ग्रेट सिम्बोलिज्म ऑफ द ग्रेट बुद्धिस्ट वर्चूज along with the great masterly skill of sculpting this piece of art deserve to be a national identity of the great nation. What was the symbolism? There are various interpretations regarding the symbolism. अब उनमें से दो जो हैं वो ज़्यादा फेमस हैं. अब देखते हैं कि क्या सिम्बॉलिकली ये जो लाइन्स थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे. These 4 lines are the various forms of Buddha or Sakya-Simha, symbolizing power, courage, pride, confidence. They are joined back to back, facing the east, west, north, and south, signifying Ashoka's victory in all 4 directions. The smaller wheels on the abacus stand for his victory in the intermediate regions, reigning him supreme in the whole world. The 4 animals are believed to symbolize different aspects of Lord Buddha's life. The elephant stands for the dream of Queen Maya, in which a little white elephant enters her womb. The bull represents desire during the life of Buddha as a prince. The horse represents Buddha's departure from royal life.
The loin represents the achievement of enlightenment or nirvana. It also stands for the royal lineage as he belongs to the Sakya clan. The Dharma Chakra spreads the continuous motivation to work for 24 hours and stand for the victory of righteousness over physical force. अब ये जो चार के चार शेर हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो बुद्धा की पावर, करेज और प्राइड एंड कॉन्फिडेंस, ये जो चार शिक्षा उनका मेन उन्होंने दी थी, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कहा जाता है कि ये जो पीठ के साथ पीठ जोड़कर उनको चार दिशाओं को फेस करते हुए, जैसे वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को फेस करते हुए बनाया गया है, वो भी सिंबॉलिक है कि इस तरह अशोक ने चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। और वो जो छोटे चक्र हैं वो उसके छोटे छोटे जोड़ कर रखे हुए राज्यों को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो चार एनिमल्स जो मैंने आपको बताया था, वो जो पेडेस्टल है अबैकस, उसके ऊपर रन कर रहे हैं, जिनमें से एक एलिफेंट है जो क्वीन माया के ड्रीम को रिप्रेजेंट करती है, और एक है बुल, जो बुल है वो रिप्रेजेंट करता है डिज़ायर, जो एक यंग प्रिंस की थी, और यंग प्रिंस सिद्धार्थ जो लेटर ऑन गौतम बुद्ध बने। और जो हॉर्स है रिप्रेजेंट करता है बुद्धा का डिपार्चर, अपने सारे राजसी प्रलोभनों को छोड़कर, वो जो उन्होंने अपना जीवन बदलने के लिए वन्य की ओर प्रस्थान कर दिया था। और वो जो लास्ट वन है लॉइन, वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं? उनकी अचीवमेंट और जो उन्होंने निर्वाणा प्राप्त किया आफ्टर तपस्या, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो ये तो उसका एक सिंबलिज्म है। दूसरा सिंबॉलिक मतलब क्या निकलता है? लेट अस स्टडी दैट आल्सो। Lion is frequently used as symbol of Buddha, and the capital thus probably symbolizes the Buddha's spread of dharma. The group of four lions bell jointly symbolize preaching the four noble truths of Buddhas to all. The symbol U with the vertical shape placed symmetrically inside the lotus symbolizes the middle path. The middle path is fundamental philosophy of Buddhism. The Buddha's dharma, the bull, the horse, the lion, and the elephant, is in moving position, could symbolize as ruling the chakras, the wheel of law. जो ये जो चारों जानवर दिखाए हैं मूविंग, वो इसलिए भी दिखाए हो सकते हैं कि वो ही शायद धर्म चक्र को चलाते जा रहे थे। और इस तरह वो एक जो चेंज था नेचर में लाने की कोशिश थी, जो बुद्ध चाहते थे कि हर तरफ पीस स्प्रेड हो, वो उसको डिपिक्ट करते हैं। अच्छा, नाउ आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द नेक्स्ट स्कल्पचर दैट विल बी चौरी बेरर। और आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड each and everything in this lecture, and if you have any doubt you may contact me, or you may drop one text over there where from you are picking this one slide. I hope you are starting nicely, as this is important that we are doing via PPTs and videos. Thank you so much. Have a good day.